बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा है जूलियस सीजर। पेज नंबर 43 का थर्ड पैरा है। लेट अस रीड नाउ। I have come with Brutus's permission to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. Caesar was always kind and generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely ambition should be made of harsher stuff. But Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. Yesterday at the games you saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yes, yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. मैं ब्रूटस की इजाज़त से सीजर के जनाजे में बोलने के लिए आया हूँ। सीजर मेरा दोस्त था, वफादार और मेरी खातिर सच्चा था, लेकिन ब्रूटस का कहना है कि वो लालची था और ब्रूटस एक काबिल एहतराम शख्स है। सीजर हमेशा ही गरीबों की खातिर मेहरबान और कुशादा दिल था। इसके दिल में इनके लिए बहुत प्यार और रहम था। लालच लाजमन ही किसी सख्त कपड़े से बनी होती होगी, लेकिन ब्रूटस का कहना है कि वो लालची था और ब्रूटस एक काबिल एहतराम शख्स है। कल खेलों के दौरान आप सब ने देखा, मैंने सीजर को सल्तनत का ताज पेश किया जो कि इसने 3 बार ठुकरा दिया। क्या वो लालची था? फिर भी ब्रूटस का कहना है कि सीजर लालची था और ब्रूटस एक काबिल एहतराम शख्स है। And now the Romans, moved by his words, began to turn against Brutus. There is truth in what Antony said. They said to each other, Caesar has been greatly wronged. Remember, he would not take the crown, therefore it is certain he was not ambitious. और अब अहले रोम इसके अल्फाज से मुतासर होकर ब्रूटस के खिलाफ होने लगे। एंथनी ने जो भी कहा इसमें सच्चाई है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। याद रहे कि इसे ताज कबूल नहीं किया था, इसलिए ये बात यकीनी हो जाती है कि वो लालची नहीं था। एंथनी वेंट ऑन टू से दैट he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so, because I should wrong the honorable man, whose words have killed Caesar. The people now wholly on his side shouted, Honorable man, they were wicked murderers. एंथनी ने आगे कहा कि वो इनके दिलों में नफरत और गुस्से की आग भड़का सकता है, लेकिन इसने दिखलावा किया कि ऐसा करने का इससे कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसा करने में इन इज्जतदार आदमियों के साथ गलत कर रहा होगा जिनकी तलवार से सीजर का कत्ल हुआ है। लोग जो कि आप पूरी तरह से उसकी तरफ हो चुके थे, चलाइए काबिल इज्जत शख्स, वो तो बदकार कातिल थे। And Anthony spoke again, If you have tears, prepare to shed them now. He showed them Caesar's cloak torn by the swords of men whom he had thought were his friends. See what a rent the Casca made, cried Anthony, and here the well-beloved Brutus struck. This was the unconscious cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. और अंथानी दोबारा बोला, अगर आपके पास आंसू है तो इन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाइए। इसने इन्हें सीजर का चोगा दिखाया जो कि इन लोगों की तलवार से फटा पड़ा था जिन्हें वो अपने दोस्त समझता था। देखिए कास्कर ने कितना बड़ा छेद कर दिया है, एंथनी ने चलाकर कहा, और यहाँ प्यारे ब्रूटस ने वार किया। ये सबसे बुरा जख्म है। आपको पता है कि सीजर उसे कितना प्यार करता था, और जब उसे पता चला कि ब्रूटस बेवफा था तो इसका वसी दिल चकनाचूर हो गया। Oh, people cried, oh, noble Caesar, oh, most bloody sight, we will be revenged. लोग चलाइए, oh, नेक सीजर, oh, खूनरेज मंजर, हम बदला लेंगे। Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of his plan had worked. बदला लेने के लिए चलाते हुए वो बड़ी तेजी से सीजर की कातलों की तलाश में बाजार के बाहर दौड़ गए, और मार्क एंथनी को बड़ी तसल्ली हुई। इसके मंसूबे के पहले हिस्से ने काम कर दिखाया। Brutus and
Coscus fled to Greece. About a year later, they were captured with their army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with their enemy were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideal and were fighting among themselves. As Cyrus he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. ब्रूट और कैसस भागकर यूनान चले गए। तकरीबन 1 साल बाद वो सार्डिस में अपनी फौज के साथ अपने खेमे में थे, और एंथनी और कैक्टस सीजर का एक दो और दोस्त के साथ अपनी फौज के साथ फिलिपी के शहर के पास कुछ मील की दूरी पर था। इसी 1 साल के दौरान ब्रूटस एक उदास और गुस्सैले किस्म का आदमी बन चुका था। इसके साथ ही अपने असूल गंवा चुके थे और आपस में लड़ते रहते थे। साजिश में उसे खबर मिली कि उसकी बीवी की मौत हो गई थी और इसकी कड़ाहट में दुख भी शामिल हो गया। That's all about today's lecture. Assalamu alaikum.